Hello students, welcome to StudyGist, the world of educational solutions. StudyGist एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हर तरह का एजुकेशनल सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाता है। तो आज हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में और सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, like us on Facebook and please join our Telegram channel. This is the link for our Telegram channel and this is the Telegram channel. For daily updates and your queries, please join our Telegram channel. Follow us on Instagram and join our WhatsApp group also. This is how our YouTube channel looks like and this is the Facebook page. तो चलिए शुरू करते हैं cell structure and chromosomes. So the body of any organism is made of cells. In case of adult human body, there could be 37 trillion cells. ठीक है? और एक typical cell में ऐसे structures, ऐसे cellular organelles देख सकते हैं. Golgi bodies, mitochondria, lysosome, centrosome, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म जो है वो एक ग्राउंड सब्सटेंस की तरफ होता है, राइबोसोम्स एंड द न्यूक्लियस. द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल. ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी में ब्रेन का काम क्या है कि हर चीज को कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना. तो इनसाइड द सेल ऑल्सो द न्यूक्लियस डज द सेम टास्क. And this mitochondria, these are called powerhouse of the cell. ठीक है, powerhouse means जहां पे एनर्जी बनता है. तो inside this mitochondria is also energy is produced. ठीक है, inside the to be used in any cellular process. तो mitochondria, that's why is called the powerhouse of the cell. So this is the structure of a typical cell, you can say. And the nucleus, that is the actually main solid thing inside the cell, which actually is called the brain, and it controls all the types of activities of the cell. So coming to chromosomes, inside the nucleus actually, ठीक है, inside the nucleus actually there are many ऐसे करके reticular structures होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रोमाटिन. तो क्रोमैटिन से ही एक्चुअली ये क्रोमोसोम्स बनते हैं. क्रोमोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग इन 1882 एंड ही एक्चुअली ऑब्जर्व क्रोमोसोम इन सैलामेंडर लार्वल सेल्स. दिस इज अ सैलामेंडर, दिस इज अ एम्फीबियन. ठीक है, थोड़ा थोड़ा छिपकली की तरह दिखता है, बट दिस इज अ एम्फीबियन. दैट मीन्स इट कैन लिव इन बोथ वाटर एंड टेरेस्ट्रियल लाइफ. ठीक है, तो सैलामेंडर का जो लार्वा होता है, जो जुमेनाइल्स होते हैं, उनके जो सेल्स हैं उनमें फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम्स का डिस्कवरी किया था. तो एज आई सेड बिफोर, द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस एंड इनसाइड द न्यूक्लियस देयर आर क्रोमैटिन. क्रोमैटिन्स आर जस्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, जब सेल डिविजन होता है at the time of cell division, this chromatin actually are condensed to form this type of body and these are called chromosomes. Why chromosomes? The term chromo means colored and some means body. तो chromosome means colored body. ठीक है, ऐसा क्यों कहा जाता है? Because during the cell division, the chromosomes are actually get condensed and they take very dark stains, so they appear as a kind of colored some kind of thread like structures. That's why they are called chromosome, colored bodies inside the nucleus. And at the time of cell division only the chromosomes are seen in the cell. बाकी के जितने भी चीज होते हैं वो थोड़ा थोड़ा डिजॉल्व टाइप का हो जाता है, like the nucleus is totally dissolved. Anyways, inside this chromosome, the chromosome is actually, you can see, the chromosome is actually made of this DNA. ठीक है, DNA जो है, DNA से ही बनता है chromosomes. DNA are the actually thread-like structures. ठीक है, which contain genes. अब ये genes क्या है?
जीन्स जो होते हैं वो डीएनए का ही पोर्शन होते हैं दैट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, ठीक है, उसमें जो मैसेज है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, वो बाहर से हम देख सकते हैं, उसका जो एक्सप्रेशन है उसको हम बाहर से देख सकते हैं। और ये जो जीन्स है उससे mRNA बनता है, ठीक है। अभी के लिए आप इतना ही जान लीजिए कि जीन्स जो है दैट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड इट कोड्स फॉर सम mRNA मॉलिक्यूल्स। एंड जीन्स क्या है? जीन्स आर एक्चुअली पार्ट्स ऑफ दिस डीएनए। और डीएनए जो है, डीएनए से क्या बनता है? क्रोमोसोम्स बनता है, ठीक है। तो आपका न्यूक्लियस ये है, न्यूक्लियस के अंदर आपका क्रोमैटिन्स है, क्रोमैटिन रेटिकुलम है, उसको रेटिकुलर है ऐसे कहते हैं। जो क्रोमोसोम्स है वो क्रोमैटिन से ही बनता है। ड्यूरिंग द सेल डिविजन टाइम they are condensed to form this kind of colored bodies, and these chromosomes are actually made of made of DNA, and certain portions of the DNA are called gene which actually express itself, ठीक है। हमारा जो भी बॉडी का जो भी फीचर हो सकता है, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो स्किन कलर हो, चाहे वो आई कलर हो, चाहे कुछ भी फीचर हो, all of these are actually governed by these genes, and these features are actually inherited from our parents by these genes, ठीक है। जीन्स जो है वो पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग्स तक ये जितने भी फीचर्स है उसको कैरी कर सकते हैं, कैरी करते हैं एक्चुअली। एंड हमसे भी जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उसमें भी ये जीन्स ही जो है वो एक्चुअली ये जो फीचर्स है उनको कैरी करेंगे। तो कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स ऑलमोस्ट लुक लाइक दिस, ठीक है। क्रोमोसोम्स का दो ऐसे आर्म्स होते हैं, नॉट नेसेसरी वो अनइक्वल इन शेप होंगे, यूजुअली दे आर अनइक्वल शेप। द शॉर्ट आर्म इज कॉल्ड पी, स्मॉल पी, एंड द लॉन्गर आर्म इज कॉल्ड द क्यू, लॉन्गर आर्म, ठीक है, क्यू कहते हैं उसको। एंड उनके बीच एक ऐसा कंस्ट्रिक्शन होता है जिसको सेंट्रोमियर कहते हैं। तो ये सेंट्रोमियर जो है दैट एक्चुअली होल्ड्स बोथ द आर्म्स, एंड यू कैन सी देयर आर बैंड्स, देयर आर डार्क एंड लाइट बैंड्स, ठीक है। बैंड्स को हम ऐसे नंबरिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके नंबरिंग भी कर सकते हैं। एक्चुअली दिस पोर्शंस ऑफ दिस बैंड्स आर एक्चुअली द जीन्स, ठीक है। दिस इज अ क्रोमोसोम नंबर 12। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके जो बैंड्स है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस 3 बैंड इन दिस पी आर्म दैट इज द शॉर्ट आर्म, ठीक है। 12p3 दैट मीन्स क्रोमोसोम नंबर 12, p is the short arm and 3 is the number of band. Here is also you can see that 12q5, that means the chromosome number 12, Q is the long arm and 5 is the number of the band, ठीक है, serial number of the band. And the ends of these chromosomes are called telomeres, ठीक है। telomeres जो है, telomeres को क्या है? The ends of the chromosomes, and these telomeres actually continue to get shortened with each round of replication. Replication means the formation of another chromosome from a existing ones, ठीक है। तो ईच राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में क्या होता है, ये जो टेलोमियर्स है दे गेट शॉर्टेन, ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा करके छोटा छोटा होते जाते हैं। तो नाउ वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम। वी ऑल हैव every chromosomes in pairs. In normal cases all the chromosomes are paired in a normal individual, and these pairs are actually called homologs of each other or the homologous chromosomes. And at the time of cell division the chromosomes are actually replicated and they are split into chromatids. The chromatids formed by the same chromosome are called the sister chromatids. Like आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो green chromosome का जो chromatids है those are sister chromatids, while the purple chromosome का जो chromatids है उनको हम कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। लेकिन जो ग्रीन क्रोमैटिड्स है और जो पर्पल क्रोमैटिड्स है उसको हम कहेंगे नॉन सिस्टर, बिकॉज दे आर कमिंग टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर करके रखना है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स है एक्चुअली द पेयर्स, ठीक है। उसको होमोलोगस क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें सेम जीन्स रहते हैं, ठीक है, सेम जीन्स यहाँ पे रहते हैं। उसका दो अलग अलग एलील्स रह सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट जीन्स एंड एलील्स
इन प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। तो ये डिफरेंट एलिल्स हो सकते हैं, ठीक है। ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी ऐसा हो सकता है, मे नॉट बी, ये कैपिटल टी कैपिटल बी भी हो सकता है, ये स्मॉल टी भी हो सकता है। इफ यू रिमेंबर, ठीक है, मेंडल्स लॉ क्लासेस, तो कैपिटल टी इज द जीन फॉर टॉलनेस, ठीक है, and in case of pea plants, and small t is the gene for dwarfness in case of pea plants, and this small t, this is the recessive one, and the capital T is the dominant one in case of pea plants as I discussed. तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उसमें ऐसे हो सकते हैं सेम जीन्स लेकिन डिफरेंट एलील्स हो सकते हैं, और मे बी द सेम एलील्स भी हो सकते हैं। और जो होमोलोगस क्रोमैटिड्स के जो डिफरेंट क्रोमैटिड्स है, उस क्रोमोसोम्स का जो डिफरेंट क्रोमैटिड्स है उसको हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट क्रोमोसोम्स। लेकिन ईच ऑफ द होमोलॉग्स दे कॉन्टेन द क्रोमैटिड्स, दोज आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। एक ही क्रोमोसोम से जो क्रोमैटिड्स आ रहे हैं उनको हम कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स, लेकिन दूसरे मतलब दो अलग अलग क्रोमोसोम से जो क्रोमैटिड्स आ रहे हैं उनको हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो दिस इज अ कैरियोटाइप, ठीक है, इसको कैरियोटाइप कहते हैं। कैरियोटाइप मीन्स ये जो जितने भी क्रोमोसोम्स है उसके पिक्चर्स है। ये एक ह्यूमन कैरियोटाइप है, ठीक है। ह्यूमन में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज 23 पेयर्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल द क्रोमोसोम्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके ऑल द क्रोमोसोम्स दे ऑल आर इन पेयर्स एक्सेप्ट दिस XY, आई एम कमिंग टू दिस लेटर, ठीक है। ऑल ऑफ द क्रोमोसोम्स दे आर पेयर्ड एंड ईच ऑफ देम are actually the homologous chromosomes, like these two are homologous chromosomes, these two are homologous chromosomes, these two are, and so on. But this number 10 and number 11, number 3 and number 4, number 4 and number 5, those are not homologous, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक एक जो पेयर है उसके जो पार्टिसिपेंट्स है, पेयर का जो पार्टिसिपेंट्स है, पेयर का जो मेंबर्स है, एक्चुअली नॉट पार्टिसिपेंट्स, उसको हम होमोलोगस कह सकते हैं, लेकिन डिफरेंट पेयर को हम होमोलोगस नहीं कहेंगे, बिकॉज ये जो पेयर्स है इसमें सेम जीन ही रहेंगे, मे बी डिफरेंट एलील्स लेकिन द सेम जीन्स। लेकिन ये क्रोमोसोम 4 और क्रोमोसोम 3 जो है, या फिर क्रोमोसोम 4 एंड क्रोमोसोम 5, दे डोंट हैव द सेम जीन्स, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपको एकदम अपने खुद को एकदम एसिमिलेट करना पड़ेगा आपको। अच्छा, आपको पता है क्या, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है एक सेल के अंदर, दैट कैन बी 2.2 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है, 2.2 मीटर्स लॉन्ग, वेयर एज द सेल्स, ठीक है, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस, उसके अंदर डीएनए होता है, लेकिन सेल्स जो होते हैं वो तो माइक्रोस्कोपिक है, और 2.2 मीटर मतलब तो काफी लंबा होता है, ठीक है। तो ऐसा इतना लंबा चीज, इतना लंबा एक डीएनए मॉलिक्यूल एक छोटे से सेल जो व्हिच इज माइक्रोस्कोपिक, उसमें कैसे फिट आ सकता है। और एक चीज और भी है कि अगर एक इंसान, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग, उसमें जितने भी डीएनए है उसको हम एकदम पूरा टाई अप कर लेंगे एंड टू एंड, तो दैट वुड बी एक्चुअली 300 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, ठीक है। इतना जो डिस्टेंस है, ठीक है, 15,000 किलोमीटर, 15,000 एक्चुअली, 15 लाख किलोमीटर्स एक्चुअली। तो ये इतना जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको हम कवर कर सकते हैं अगर सारे के सारे जो डीएनए है एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में। मैंने पहले ही कहा था कि एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 37 ट्रिलियन सेल्स हो सकते हैं, ठीक है, 37 ट्रिलियन, ठीक है, ट्रिलियन जो सेल्स है उसमें जितने भी टोटल डीएनए है उसको हम एंड टू एंड टाई अप करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है उसका 300 टाइम्स हो सकता है। तो अभी आपको मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे हो सकता है इतना लंबा सा चीज एक ऐसे छोटे से सेल के अंदर, उसके अंदर एक न्यूक्लियस, वो और भी छोटा है, उसके अंदर कैसे फिट आ सकता है। तो दिस इज द मैजिक ऑफ पैकेजिंग, ठीक है। लेकिन ये पैकेजिंग बहुत एफिशिएंट होता है। मैं जब भी कहीं पे जाता हूं तो पैकिंग करना पड़ता है, लेकिन आई एम नॉट दैट मच एफिशिएंट लाइक द सेल इज इन पैकेजिंग,
ठीक है, मैं तो बहुत क्लमजी हो जाता हूं, यहां से वहां, थोड़ा यहां बाहर हो जाता है, थोड़ा यहां बाहर हो जाता है, लेकिन सेल जो होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें डीएनए बहुत एफिशिएंटली पैक्ड होता है। अभी कैसे होता है ये हमको देखना पड़ेगा। तो यहां पे एक्चुअली डीएनए के साथ, ठीक है, डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन्स आके मिलते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं हिस्टोन्स। ठीक है, ये हिस्टोन्स जो है वो 5 टाइम्स का हो सकता है, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। अब ये H2A, H2B, H3 एंड H4 ये जो 4 हिस्टोन्स है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच फॉर्म्स एन ऑक्टामर। ठीक है, ऐसे करके 8 मॉलिक्यूल्स टोटल करके एक ऑक्टामर बनाते हैं, जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम्स। एंड द डीएनए इज एक्चुअली wrapped around this न्यूक्लियोसोम कोर। एक्चुअली ये जो ऑक्टामर होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। और ये जो H1 है that actually acts as the linker DNA, ठीक है, that actually seals the DNA wrapped around this न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ऑक्टामर है, ये दूसरा ऑक्टामर है, दोनों के बीच एक H1 जो है दैट इज द लिंकर डीएनए। तो ऐसे करके ये न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर के बीच, न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर में ये रैप्ड हो जाता है। पूरा जो डीएनए मॉलिक्यूल है दैट इज रैप्ड अराउंड दिस न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर, एंड दिस H1 एक्चुअली इज द सीलिंग एजेंट आप कह सकते हैं, जो एक्चुअली इज joined between the linker DNA between these 2 न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, तो ये ऑक्टामर जो है उसको हम न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर भी कह सकते हैं या फिर कोर न्यूक्लियोसोम भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये जो H1 है दैट इज एक्चुअली रैप्ड अराउंड दिस लिंकर डीएनए। तो ऐसे करके पूरा एक, ठीक है, ऐसे करके एक चेन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा करके एक चेन जो है बनता है, जिसके अराउंड ये पूरा जो डीएनए है, डीएनए मॉलिक्यूल जो है दैट इज रैप्ड, दैट इज टोटली रैप्ड, एंड इट फॉर्म्स अ बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जो ऐसा दिखता है, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। यहां पे भी आप देख सकते हैं छोटा छोटा करके ये, दीज आर दी न्यूक्लियोसोम्स एंड इन बिटवीन देम देयर इज द लिंकर। ठीक है, लिंकर जो डीएनए है दैट इज द इन बिटवीन द बीड्स, and this structure, this beads on a string structure, that is again actually stacked, that is again actually ऐसे करके spirally, ठीक है, ऐसे करके stacked होता है। तब जाके ये एक ऐसा क्रोमोसोम्स ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसका जो ब्रीथ है दैट इज 700 नैनोमीटर। ठीक है, ऐसे करके वो पूरा डीएनए जो है न्यूक्लियोसोम के इर्द गिर्द वो रैप्ड होके ऐसा करके एक मेटाफेज क्रोमोसोम, मतलब जो कंडेंस सिचुएशन है क्रोमोसोम का, दैट इज फॉर्म्ड। क्रोमोसोम्स आर एक्चुअली ऑफ 2 काइंड्स। ठीक है, वन इज ऑटोसोम्स, अनदर इज सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स आर एक्चुअली डू नॉट हैव एनी रोल in determining the sex। ठीक है, उसका क्या सेक्स होगा जो इंडिविजुअल है, that is not determined by these autosomes, and these are, in case of human, these are 22 pairs in number, whereas sex chromosomes do determine sex, वो मेल होगा या फीमेल होगा, that is actually determined by these sex chromosomes, and in case of human beings these are one pair, the pair may be XX or may be XY। if you remember this one, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 22 pairs जो है those are autosomes, and this one pair that is XY हो सकता है, XX भी हो सकता है, लेकिन कभी भी YY नहीं होगा। ठीक है, XY हो सकता है, XX हो सकता है। तो this pair is the sex chromosomes, and the rest 22 pairs are called autosomes, and autosomes do not have any role in determining the sex, whereas the sex chromosome do determine the sex of the individual। that means कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, एंड अगर हम क्रोमोसोम्स का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर
बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स को हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। मेटासेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमियर जो है मैं पहले ही बता चुका हूं, सेंट्रोमियर इज द कंस्ट्रिक्शन इन बिटवीन द टू आर्म्स, ठीक है, एंड द सेंट्रोमियर्स एक्चुअली होल्ड द टू आर्म्स, ठीक है। तो अगर वो सेंट्रोमियर एकदम बीचों बीच है तो उसको हम कहेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर वो सेंट्रोमियर ऐसे थोड़ा सा स्क्यूड है तो उसको हम कह सकते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर वो सेंट्रोमियर एकदम एंड की तरफ है, एंड के पास है, तो उसको हम कह सकते हैं एक्रोसेंट्रिक। एंड इफ द सेंट्रोमियर इज जस्ट एट द एंड देन इट मे कॉल्ड एज टेलोसेंट्रिक, ठीक है। और मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में एक सेकेंडरी ऐसा कंस्ट्रिक्शन भी हो सकता है एट एनी वन ऑफ द एंड्स, which is called the satellite, ठीक है। तो this is the classification of chromosome based on the position of the centromeres. So can you tell me that you are given some cells from your palm, ठीक है, from your palm and another cell from the reproductive organ, ठीक है। मतलब जो टेस्टिस या ओवरी है, यहां से लेके कुछ सेल्स आपको दिया गया है और कुछ पाम्स हो सकता है, ठीक है, उसमें आपको सेल्स कुछ दिया गया है। तो कौन से सेल में ऑटोसोम्स होगा और कौन से सेल में सेक्स क्रोमोसोम्स होगा? कैन यू टेल? द आंसर इज एक्चुअली ऑल द सेल्स इन आवर बॉडी आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। सारे के सारे जितने भी सेल्स है हमारे बॉडी में, चाहे वो कहीं पर भी है, उनमें सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम्स रहेंगे एंड सेम नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स रहेंगे। सारे के सारे सेल्स में 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स रहेंगे एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स रहेंगे। तो इसका ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर यही होगा कि बोथ, ठीक है, बोथ ऑफ देम विल कंटेन बोथ ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम। दोनों तरह का ही क्रोमोसोम्स जो है, ऑटोसोम्स हो या सेक्स क्रोमोसोम्स है, will be found in both kind of cells, whether it is from the palm, whether it is from the foot, whether it is from the face, whether it is from anywhere from your body, ठीक है, उसमें दोनों टाइप का क्रोमोसोम्स ही दिखेंगे। So this was all for this class, chromosome structure. I hope everything is clear to you. If not, you can obviously make your query in our Telegram channel. Please do read all these things from your book. Till then, thank you for listening to the class. Bye.